A very good morning, grade 7. Hope all of you are fine. Dear students, today we are going to start chapter 6, Achilles. Achilles, which is written by Gerald Malcolm Durrell. You know, this is the story about a young boy and his pet tortoise named Achilles. Do you know who Achilles was? Achilles was a brave and courageous Greek hero. Actually, it was the name of a Greek hero who was very brave and courageous. And the name of this story is उसके ही नाम पर जो है story का name है Achilles. Actually, in this story, Achilles is a pet. Is the name of a pet tortoise of the narrator. So dear students, I have summarized this chapter. Now I'll read the summary of this chapter. It will be helpful for you and you will find out all the question answers with the help of this summary. Okay, after watching or listening this summary carefully, you will read the chapter. Okay, so let's start. This wonderful story is about a young boy and his pet tortoise named Achilles. What was the name of his pet? Achilles. Achilles was a brave and courageous hero, Greek hero, whose name is given to the tortoise in this story. This story is a part of the collection of Durrell's Story in My Family and अदर एनिमल्स. ये जो है स्टोरी किसका पार्ट है? डुरेल्स की स्टोरीज हैं. क्या स्टोरी है? माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स में से ली गई है. ओके, एंड राइटर्स मोस्टली वर्क्स reflect his love for nature and all animals. Actually, Gerald Malcolm Durrell loved with nature and animals. Okay, once writer saw a fascinating character ऑन अ लॉनली रोड. एक बार उसने क्या देखा? एक फैसिनेटिंग करेक्टर देखा एक रोड के ऊपर, विच वॉज लीडिंग वन ऑफ द रिमोट माउंटेन विलेजेस. ओके, उसने माउंटेन विलेजेस में से जाता हुआ एक बहुत ही फनी सा करेक्टर देखा. हु हैड अ फॉक्स लाइक फेस with large eyes and like this you can see from this picture. This is very funny or fascinating character for writer. Okay, that person had a fox like face. With large eyes and he had worn a funny hat. To whom he purchased the tortoise Achilles. ये उस पर्सन की बात कर रहा है जिससे नरेटर ने वो टॉर्टोइस खरीदा. His name was Rose Bittleman. The name of this person was Rose Bittleman. Okay, you can write down the features or character or physical description of this Rose Bittleman from these lines. Okay, from this paragraph you can write down the physical features of this Rose Bittleman. Understand? Next, in this story, Rose Bittleman carried bamboo cages full of pigeons. उसके पास क्या है? एक bamboo cage है. You can see in this picture, which was full of pigeons and young chickens on his back. When the narrator realized that Rose Bittleman couldn't speak, जब नरेटर को पता लगता है कि रोज बिटलमैन जो है बोल नहीं सकता, he started communicating with him through the gestures. उससे क्या है? इशारों से बात करते हैं, gestures से बात करते हैं, which shows that the narrator was very receptive and sensitive and अंडरस्टैंडिंग. जो नरेटर था वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था और अंडरस्टैंडिंग था. एंड ही कैन टॉक विद जेस्चर्स. ओके, कि वो अपने इशारों से भी बात कर सकता था. ही वॉज ऑल्सो एन एनिमल लवर. वी आर टॉकिंग अबाउट नरेटर वॉज ऑल्सो एन एनिमल लवर. It is indicated by his by his attraction, fascination with the Rose Bittleman and his turtles. You know, narrator already had a dog at his home. After this, he brought a tortoise from Rose Bittleman because it was amazing.
It was amazing and wonderful. Here we came to know that Rose Beetle Man cared well for his pet. आप इस स्टोरी में देखोगे कि कैसे रॉस बीटल मैन जो है अपने पेट की जो है बहुत अच्छी केयर करता है. बाय द वे ही हैड मेंटेन्ड द टर्टल्स, उसने अपने टर्टल्स को कैसे मेंटेन किया हुआ था. ही पॉलिश्ड, उसने अपने टर्टल्स को पॉलिश किया हुआ था. पॉलिश देयर शेल्स एंड डेकोरेटेड देयर फ्रंट लेग्स with little was and the narrator selected one particular turtles. अब इतने सारे टर्टल में से नरेटर क्या करता है, उसमें से एक टर्टल्स को सिलेक्ट कर लेता है, उससे जो है परचेज कर लेता है. नरेटर selected one particular turtles. It had a shell that was size of a teacup. उसका जो साइज़ क्या था, एक टी कप के जैसा था. इट्स आइज वर ब्राइट एंड शाइनी, जो वो टर्टल जो नरेटर ने सेलेक्ट किया उसकी आइज़ कैसी थी, ब्राइट एंड शाइनी. बट द नरेटर वॉज नॉट रेडी टू गिव हिम एज मच प्राइस ऑफ द टर्टल्स वट रोज बीटल मैन वांटेड. जैसा कि नॉर्मली होता है कि जितना पैसे कोई मांगता है उसको लोग उतना नहीं देते हैं. तो लाइक दिस नरेटर वॉज नॉट एग्री टू गिव हिम द सेम प्राइस वट ही वॉज आस्किंग, जो वो मांग रहा था. दे वर नॉट हैविंग अ वर्बल कन्वर्जेशन, उनकी जो है बोलने में कन्वर्जेशन नहीं हुई. बिकॉज रॉस बीटल मैन couldn't speak, क्योंकि रॉस बीटल मैन जो था वो बोल ही नहीं सकता था. सो दे वर कम्युनिकेटिंग थ्रू जेस्चर्स, वो इशारों में बातें कर रहे थे. एट लास्ट रोज बीटल मैन agreed to reduce the price of the turtles to half 5 इंस्टीड ऑफ 10. अब जो है रॉस बीटल मैन उससे 10 रुपीज़ मांग रहा था, बट अब कितने में एग्री हो गया वो, 5 रुपीज़ में. नाउ नरेटर बॉट Achilles एट हिज होम. अब जो है नरेटर ने क्या किया, वो नरेटर एक्लीज को जो है अपने घर ले गया. हिज डॉग रोगर एंड एक्लीज वॉर राइवल्स. राइवल्स मीन्स दुश्मन थे. बिकॉज बोथ लव ग्रेप्स इक्वली, दोनों को ही, उसके डॉग को भी ग्रेप्स अच्छे लगते थे और एक्लीज को भी. द नरेटर न्यू दैट एक्लीज लाइक्ड strawberries because he would become hysterical मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है. एट द mere sight of them, जब भी वो स्ट्रॉबेरीज को देखता है तो जो एक्लीज था वो क्या था, उसको जो है वो एकदम क्या था, हिस्टेरिकल हो जाता था, एकदम उत्तेजित हो जाता था. ही एट ऑल स्ट्रॉबेरीज, और वो जो सारी स्ट्रॉबेरीज गलप करके खा जाता था. वेयर इज ही एट ऑल स्ट्रॉबेरीज इन अ गलप, वेयर एज ही वुड ग्रैब द बिग वन, जो बड़ी बड़ी होती थी उसको ग्रैब करता था और जो स्मॉल होती थी उसे क्या था, स्वेलो कर जाता था, एकदम ही ग्लप कर जाता था. लाइक दिस एक्लीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक अ फैमिली मेम्बर फॉर नरेटर. अब जो है धीरे धीरे क्या है, एक्लीज जो था नरेटर का फैमिली मेम्बर बन गया. एंड एक्लीज लाइक ह्यूमन कंपनी एज ही वुड अपीयर एनीवन कम इनटू द गार्डन. जब भी वो किसी को गार्डन में आते हुए देखता था उसे ह्यूमन कंपनी बहुत अच्छी लगती थी लोगों के साथ, और वो लोगों की बात को भी ईजिली समझ जाता था. और जो एक्लीज था वो बहुत इंटेलिजेंट था, उससे जो है अपना नेम भी जल्दी से ही लर्न हो गया था. द नरेटर टोल्ड अस दैट Achilles was an intelligent beast because he learned his name soon and responded well to others. जब कोई उसे बुलाता था तो उसको रिस्पॉन्स करता था. One day the garden gate was left open. तो एक बार क्या है, मिस हैपनिंग हो गई. क्या मिस हैपनिंग हुई, गार्डन गेट जो था वो खुला ही रह गया है. एंड Achilles escaped out through the garden gate. Achilles जो था वहाँ से बाहर चला गया. Everyone in the family started to search him and they were shouted strawberries strawberries. अब सबको पता था कि उसे स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी लगती है. सो दे वर शाउटिंग स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरीज, ताकि वो एक्लीज जो है स्ट्रॉबेरीज का नाम सुन के जल्दी से आ जाएगा जहाँ भी वो छुपा होगा. बिकॉज दे न्यू एक्लीज लव स्ट्रॉबेरीज, की उनको पता था कि स्ट्रॉबेरीज उसे बड़ी पसंद है. बट ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ बेकार गया, और जितने भी आवाज़ लगा रहे थे सब बेकार गया. फाइनली दे फाउंड एक्लीज इन द वेल. लास्ट में उन्होंने एक्लीज को कहाँ पे पाया, कुएं में, वेल में देखा. ही वॉज डेड एंड कुडंट बी रिवाइव, वो जो है मर गया था और जीवित ना हो सका. His corpse was buried in the garden. His corpse क्या है यहाँ पे, उसकी जो बॉडी है उसको जो है गार्डन में ही एक स्ट्रॉबेरी प्लांट के नीचे जो है वहाँ पर ही उसे जो है बुरिड कर दिया, दबा दिया गया. एंड गार्डन इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्लीज नरेटर्स लाइफ. और जो ये क्या है, इंडिकेट करता है कि
एक्िलीज जो था, वो जो टर्टस था नरेटर की लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और अ शॉर्ट फनरल एड्रेस, एक जो है मरने के बाद जो है किसी की डेथ के बाद एक फनरल एड्रेस रखा जाता है, तो सेम टाइप से राइटर ने भी एक्िलीज की डेथ के बाद एक फनरल एड्रेस रखा। एड्रेस वॉज हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ एक्िलीज एंड रोगर कैप्ट ऑन वैगिंग इट सेल। अब जब रोगर जो था वो क्या था, अपनी टेल को वैग कर रहा था, वैगिंग कर रहा था थ्रू आउट द फनरल सर्विस। जब वो जो फनरल हो रहा था, फनरल एड्रेस हो रहा था, पूरी फनरल एड्रेस में वो क्या है, अपनी टेल को वैग कर रहा था। बट इट कुड मीन दैट, इसका ये भी मतलब हो सकता है इट वॉज मिसिंग, कि या तो वो उसे मिस कर रहा था, और इट वॉज हैप्पी दैट हिज राइवल वॉज डेड, या फिर जो है रोगर जो था, डॉग था, वो हैप्पी भी हो सकता है कि उसका जो है अब दुश्मन जो है, उसका जो राइवल जो है वो मर चुका था। एट लास्ट वी कैन से दैट राइटर वॉज वेरी काइंड पर्सन एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ एक्िलीज। ही बॉट पिजन फ्रॉम रोज बिटलमैन। अब जब दोबारा से रोज बिटलमैन वहाँ पर आया तो उसने वहाँ से क्या लिया, रोज बिटलमैन से एक पिजन खरीदा जिसका नेम था क्वेशिमोडो। ओके, सो इससे हमें पता लगता है कि राइटर जो था वो बहुत अच्छा, राइटर वॉज फॉन्ड ऑफ एनिमल्स और पेट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इट वॉज द समराइजेशन ऑफ दिस स्टोरी। नाउ यू विल do back exercise of the book with the help of this. You will solve back exercise of this chapter with the help of this summary, and all of you will do a word meaning of this chapter which is marked. जो जो मार्क किए गए हैं आप सिर्फ वही वाले वर्ड मीनिंग जो है इस चैप्टर के करोगे।